Welcome to We Learn. This is session 12 of Strategic Technology Planning. So in today's session we are going to discuss the strategic planning process. Under this category, first of all we are going to discuss about the introduction to Hoshin planning. After that we are going to discuss the identifying key strategic data, that is SWOTs. After that we are going to discuss about the arranging issues in columns without talking. Then we are going to discuss about giving each column a verb noun title. After that we are going to discuss the test for relationships between categories. So these categories basically are the ones that drive the others. After that we are going to discuss the count arrows in and out, then clarifying priorities. After that we are going to discuss develop plans to address key issues, and at last we are going to discuss about the develop timeline for execution. So let us start today's session with the topic, that is introduction to Hoshin planning. So the term Hoshin Kanri is Japanese for shiny metal object such as a compass. ये जो टर्म है एक Hoshin Kanri, ये हम बेसिकली जापानीज ये एक टर्म है, इसको हम बेसिकली ड्राइव करते हैं एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लाइक कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक अ कंपास. सो जस्ट लाइक अ कंपास प्रोवाइड डायरेक्शन टू ए ट्रेवलर इन द फॉरेस्ट, Hoshin planning can provide direction to an organization. Like जैसे एक कंपास यहाँ पर किसी भी पर्सन को एक फॉरेस्ट में डायरेक्शन शो करता है, सिमिलरली उसी वे में Hoshin planning के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक डायरेक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है. So Orion has had the opportunity to work with dozens of companies over the years in the field of strategic planning. And to our knowledge, no client that has adopted Hoshin as their form of planning has ever reverted back to the methods they previously employed. Basically ये जो टेक्निक है ये काफ़ी कंपनीज ने यूज़ की. That means Hoshin planning का कॉन्सेप्ट काफ़ी कंपनीज ने यूज़ किया. dozens of companies were there, and the main thing here is कि जो भी कंपनी, किसी भी कंपनी ने जिसने इसको मेथड को यूज किया, इस प्लानिंग कॉन्सेप्ट को यूज किया, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने फिर कभी उन मेथड्स को यूज नहीं किया जो वो पहले यूज करते थे. दैट मीन्स दिस टेक्नोलॉजी, दिस कॉन्सेप्ट इज बेटर देन द प्रीवियस वन. Now there are two things that differentiate Hoshin from more traditional types of strategic planning. अब यहाँ पे दो चीजें ऐसी हैं जो कि और ट्रेडिशनल जो कैटेगरीज थी हमारी ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस थी उनसे डिफरेंशिएट करता है हमारे प्रोसेस को. सो दीज आर द टूल्स यूज्ड इन द कैच बॉल प्रोसेस. यहाँ पर फर्स्ट है इसमें जो भी हम इसमें टूल यूज करते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, एंड द सेकंड थिंग इज कैच बॉल प्रोसेस. So the management tools of Hoshin are extremely effective in helping an organization focus a global vision statement down into a series of specific action items. अब यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट टूल है Hoshin का, ये काफ़ी हम कह सकते हैं काफ़ी इफेक्टिव था. ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता था कि अपने जो ग्लोबल विजन स्टेटमेंट्स हैं उनको अचीव किया जा सके प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे में. Now let us discuss the next topic here, that is identifying key strategic data, that is SWOTs. So in this step technique is important when writing SWOTs. सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अगर हम SWOT एनालिसिस की बात करें तो उसमें टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम कैसे उसे यूज़ कर रहे हैं, किस वे में हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं. सो अ सक्सेसफुली रिटन SWOT will have two components, like the fact itself and the implications of the fact. यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. पहला कि जिस फैक्ट के थ्रू हमने किसी भी प्रोसेस को सॉल्व करने का डिसीजन लिया है, या कह सकते हैं जो सेकंड टेक्निक है वो होता है implications of the fact. That means कितना इफेक्टिवली हमने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है. So for example, suppose
your assessment revealed that turnover in the company is dangerously high. You could record this fact on a post it in a few different ways. Like अब यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है कि सपोज आपने ये रिवील किया कि जो प्रोडक्शन हो रही है, जो टर्नओवर हो रहा है वो काफी हाई है, तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करा सकते हैं. लाइक यू कैन रिप्रेजेंट इट द हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, दैट मीन्स यू कैन रिप्रेजेंट इट इन अ डिफरेंट मैनर. कोई भी जो एम्प्लॉय है उसके टर्नओवर के थ्रू से आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टर्नओवर ऑफ द कंपनी. एंड नाउ द सेकंड थिंग हियर इज हाई टेक्निकल स्टाफ टर्नओवर लिमिट्स our ability to provide timely customer support. यहाँ पर अगर हम टेक्निकल स्टाफ की बात करें तो टेक्निकल स्टाफ का जो टर्नओवर होता है उसकी जो लिमिट होती है वो हमारी एबिलिटी को शो करती है. दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स द टाइमली कस्टमर सपोर्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हेयर इज अरेंज like issues in columns without talking. जो भी ऐसे issues हैं which are similar to each other उन्हें हमें columns में represent करना होता है without discussing, without talking. So each of the notes from the previous step should be placed at random on a wall or whiteboard. जो भी हमने notes prepare किए previous steps से उन्हें हमें यहाँ पर random way में place करना होता है on a wall or on a whiteboard. Similarly the participants should then begin looking for connections between the different notes. What are the 5-6 high level consistent themes that are represented by the post-its? That means यहाँ पर जो participants हैं वो फिर start कर सकते हैं अपने connections, अपने notes. So after that the participants should pull the notes of the wall and resort them into columns that they perceive to be connected. Notes prepare करने के बाद जो participants हैं वो notes को फिर से pull off कर सकते हैं walls से and then they can resort them into columns. उसके बाद pull off करने के बाद notes को resorting की जाती है so that they can perceive, so that they can connect to each other. Now the next thing here is टेक्निक इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टू द एक्सरसाइज. कोई भी जो टेक्निक है, कोई भी जो मेथड है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. सो द फर्स्ट रूल इज दैट टॉकिंग इज नॉट अलाउड. सबसे जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट रूल होता है वो होता है दैट टॉकिंग विल नॉट बी अलाउड इन अ प्रोसेस. देन इफ पार्टिसिपेंट्स डिसएग्री ऑन वेयर अ पर्टिकुलर नोट फिट्स बेस्ट दे आर फ्री टू कंटिन्यू टू मूव इट बैक एंड फोर्थ. अब यहाँ पर ये कंडीशन आती है कि अगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एग्री नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर नोट पर कि वो कहाँ पर फिट बैठता है, तो उनको ये परमिशन होती है कि दे कैन मूव बैक एंड फोर्थ. वो किसी भी नोट को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर सकते हैं. सो दे आर नॉट फ्री टू इंगेज इन ओपन डिबेट. वो ओपन डिबेट में इंगेज नहीं हो सकते. दे आर नॉट अलाउड टू टॉक टू ईच अदर ओपनली. सो दिस इज बिकॉज ओपन डिस्कशन यूजुअली रिजल्ट्स इन, जो ओपन डिस्कशन है उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं विच आर एज फॉलोज. द सेशन टेकिंग 4 times एज लॉन्ग. यहाँ पर जो सेशन है, जो डिस्कशन टाइम होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4 times इंक्रीज हो जाता है. सिमिलरली द मोर एग्रेसिव पर्सनैलिटीज स्क्वेल्चिंग एवरीवन एल्स ओपिनियन. अब यहाँ पर जो एग्रेसिव पर्सनैलिटीज होती हैं वो दूसरों के ओपिनियन को सप्रेस कर देती हैं. And the next thing here is jumping to conclusions without properly evaluating the entire list. यहाँ पर एक conclusion जल्दी से ड्राइव हो जाता है without evaluating the entire list. सारी लिस्ट को चेकअप नहीं किया जाता, चेकआउट नहीं किया जाता, comparisons नहीं होते और कोई भी एक फाइनल डिसीजन काफी इजीली ले लिया जाता है without any evaluation. Now the next step, or we can say the next topic here, is give each column a verb noun title. So once the group has sorted the notes into 5-6 major themes, it will be necessary to title each one. अब यहाँ पर जो भी हमने sorting की है notes की 5 to 6 major themes को हमने select किया है, उनकी sorting की जाती है. After that we suggest a verb noun format. उसके बाद वहाँ पर एक verb noun format decide किया जाता है. So the titles should say you are going to do something to something. टाइटल कुछ ऐसा होना चाहिए जो ये शो करे कि आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड. सो एग्जांपल्स इंक्लूड स्ट्रीमलाइन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस और डेवलप मार्केटिंग कैपेबिलिटीज और मैक्सिमाइज
प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक एग्जांपल इंक्लूड करें स्ट्रीमलाइन प्रोडक्ट्स को, डेवलपमेंट प्रोसेस को, और डेवलप करें मार्केटिंग कैपेबिलिटीज को। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज creating titles can be difficult due to the sheer volume of information you are trying to summarize। अब कभी कभार जो टाइटल होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं क्रिएट करने, बिकॉज यू हैव टू समराइज द कंटेंट्स इन अ पर्टिकुलर टाइटल। किसी भी टाइटल में आपको कंटेंट्स को समराइज करना होता है। दैट मीन्स टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसके हेल्प से आपको सिर्फ उसे एक जस्ट बाय अ लुक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। सो टाइटल द इजियर कॉलम्स फर्स्ट। इसमें सबसे पहले उन कॉलम्स को फर्स्टली हम टाइटल देते हैं जो इजी होते हैं। देयर विल ऑलवेज बी फ्यू कॉलम्स दैट आर टाइटली कनेक्टेड एंड अ फ्यू दैट सीम ऑल ओवर द मैप। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो टाइटली कनेक्टेड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम मैप के ऊपर इजीली देख सकते हैं। सो असाइन टाइटल्स टू द इजियर वंस फर्स्ट। इसीलिए टाइटल्स हमेशा जो इजियर कॉलम्स हैं उनको फर्स्टली हम असाइन करते हैं। नाउ इन अ गिवन कॉलम देन मूव ऑन योरसेल्फ, यू गेट स्टक, देयर अपीयर्स टू बी नो कनेक्शन, कैन ऑलवेज कम बैक टू इट लेटर। अब सबसे पहले हम उन स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं जो इजियर होते हैं और उन स्टेप्स को हम बाद के लिए छोड़ देते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, डिफिकल्ट हैं, क्योंकि हम ऐसे स्टेप्स पर फिर से आ सकते हैं, फिर से उन्हें हम परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट often a column that appears to be miscellaneous will be easily broken up into other columns once the full complement of titles has been assigned। एक बार टाइटल्स को असाइन करने के बाद अगर ऐसा लगता है कि कोई जो टाइटल है वो या कोई एक कॉलम है वो मिसलेनियस है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसे हम फर्दर पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट take the assignment of verbs seriously since the titles will send a message to internal and external audiences about what is important to the company। अब जो यहाँ पर असाइनमेंट्स हैं, वर्ब्स हैं, उन्हें सीरियसली लेना होता है क्योंकि जो टाइटल्स हैं वो सेंड करते हैं एक मैसेज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। जो इंटरनल ऑडियंस है उसके पास भी एक मैसेज जाता है और जो एक्सटर्नल ऑडियंस है उसके पास भी एक मैसेज जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या टास्क परफॉर्म कर रही है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। So having said this, don't spend an hour debating between improve and enhance। यहाँ पर बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। We have to utilize our time to perform our operation and not to involve ourselves in debate। Now the next thing here is test for relationships between categories which ones drive the others। यहाँ पर अब उन रिलेशनशिप्स को टेस्ट किया जाता है जो कि दूसरे रिलेशनशिप्स को ड्राइव करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रायोरिटाइज द एलिमेंट्स। यहाँ पर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एक्सेस करते हैं। सो दिस इज डन बाय examining each pair of titles to see if there is a cause and effect relationship between them। यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि कोई cause and effect relationship तो एग्जिस्ट नहीं करती है डिफरेंट टाइटल्स के बीच में। सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग पेयरिंग। अब यहाँ पर इस पेयरिंग का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज अपग्रेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेकंड वन इज एक्सीलरेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये दो पेयरिंग की गई हैं। इट शोज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Now after that the next step is count arrows in and out। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एरोज को काउंट करना होता है which are from one phase to the other phase। So according to the logical cause and effect relationships established at the previous step, the first priority of the organization should be to upgrade information technology। It has the most arrows out, meaning it drives all the other issues। अब यहाँ पर नीड के अकॉर्डिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमें प्रीवियस स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना होता है। वी हैव टू असाइन द प्रायोरिटीज टू द वेरियस स्टेप्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग these priorities, after assigning these priorities, we have to check out the number of arrows which are going in and which are leaving the particular element। So taking the elements that have the most arrows out first, the top level of the plan would look like this। अब यहाँ पर सबसे पहले हम उन arrows को देखते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से एग्जिट कर रहे हैं।
and after examining all these aspects, we are going to plan the top level operation. So here you can have a look at the operations which we are going to follow in the following manner. Like company mission and visions are as follows. First of all, we are going to perform the upgrade information technology task. After performing this task, the next task is to develop employee skills. इसमें फिर employees की skills को develop किया जाता है. Then the next one is accelerate product development. जो भी product development process है, that means the number of products which an organization is developing in a particular period of time, this should be increased. Then the next part is delight existing customers. That means the main objective of an organization should be to satisfy the customers which are involved related to the products of an organization. Now the next part here is expand into new markets, and the last phase is improve financial position. Now let us discuss the next topic here, that is clarifying priorities. So the process for this focusing is simply to repeat the prior steps. यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा ये होता है कि जो भी हमारे प्रीवियस स्टेप्स हैं उन्हें हमें रिपीट करना होता है. So return to the list of postlets that were placed in one of the main columns, sort into column themes within the column, then title them and draw the connecting arrows. सबसे पहले हमें मेन कॉलम्स को प्लेस करना होता है, देन सॉर्टिंग परफॉर्म करनी होती है थीम्स की विद इन द कॉलम. आफ्टर परफॉर्मिंग द सॉर्टिंग वी हैव टू टाइटल द कॉलम्स एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द कनेक्टिंग एरोज. Now these issues are called strategic initiatives in Hoshin terminology. Now basically we call all these issues as the strategic initiatives. So for example, the expand into new market columns may have the following three underlying themes. अब यहाँ पर जो expansion है किसी भी market में, market column में, उनको हम three themes के according represent कराते हैं. Like the first one here is expand geographic reach. That means जितना possible हो सके उतना हमें अपनी geographical reach को increase करना होता है. After that the next one is broaden distribution channels. जो भी चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, हमें उन्हें इंक्रीज करना होता है, एक्सपेंड करना होता है. देन द थर्ड वन इज डिफाइन आइडियल प्रोस्पेक्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स. जो भी कोई न्यू ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बेस्ट वे हो सकता है किसी भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, बेटरली उसे मार्केट में एक्सपेंड करने का, उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज डेवलप प्लान्स टू एड्रेस की इश्यूज. So the first part of the catchball session is used to gain agreement on the diagram. सबसे पहला जो important task होता है किसी भी catchball session में, it is to draw the attention. सबसे पहला task यहाँ पर होता है कि किसी भी process से related, product से related जो भी customers हैं उनको attract किया जाए. So the second activity should be to start thinking through the how of execution. जो second activity होती है वो involve होती है बेसिकली एक थिंकिंग प्रोसेस के लिए. यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी ऑपरेशन को कैसे कैरी आउट कर सकते हैं. दैट मीन्स हियर वी आर गोइंग टू परफॉर्म द हाउ ऑफ ए फिनोमिना. सो टॉकिंग थ्रू द स्पेसिफिक स्टेप्स, रिसोर्सेज, कॉस्ट एटसेट्रा फॉर ईच इनिशिएटिव with the senior and middle management is usually a very worthwhile exercise. अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंट स्टेप्स कैरी आउट करते हैं लाइक रिसोर्सेज, कॉस्ट एटसेट्रा, इनको हम इनिशिएट करते हैं विद द सीनियर एंड द मिडिल मैनेजमेंट प्रोसेस, मिडिल मैनेजमेंट एक्सरसाइजेज. सो द आउटपुट शुड बी a series of project plans that spell out the details of execution. यहाँ पर जो आउटपुट होता है बेसिकली इट इज नॉट अ सिंगल आउटपुट, इट इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट प्लान्स. ये एक सीरीज होती है जिसके थ्रू हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं. Now the next step in the process is develop timeline for execution. So once project plans have been defined, the senior team will have a good sense of what is involved with overall plan execution. जब हम एक ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान बना लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उनके पास एक ओवरऑल
रिपोर्ट होती है, ओवरऑल प्लान होता है कि किस वे में कैरी आउट किए जाएंगे सारे ऑपरेशंस विच आर इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो दिस इज व्हेन टाइमलाइंस शुड बी एस्टैब्लिश्ड, और यही वो टाइम होता है जिस पर हम टाइमलाइन जनरेट करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं. सो नॉट एवरी इनिशिएटिव शुड बिगिन इमीडिएटली. जो भी हमने टास्क डिसाइड किए हैं उन्हें हम इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करते. वी डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी. So some will be delayed because they are dependent on other initiatives being completed. Others will not be considered top priority. Same चीज is discussed here. Like कोई भी जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं हो सकता है वो दूसरे ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करे, इसलिए उसको हम बाद में परफॉर्म करेंगे. सिमिलरली कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है तो उन्हें हम पहले परफॉर्म करते हैं. So the leadership team will need to sort through these issues and determine when is the best time to begin execution for each initiative. इसीलिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जो लीडरशिप टीम होती है, they are going to decide the manner in which these tasks are going to be performed. Now at the end of this session, here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, discuss introduction to Hoshin planning. Then the next question is, describe identifying key strategic data. So this is the end of today's session. Thank you.